What in the fucking world just happened 4 days ago? Like, is everybody traumatized? Yes. Is this going to be a teaching moment for our um national testing agency? No. Where do you get that idea from? So let's debrief NEET 2025. Ladies and gentlemen, it was 2 p.m. when 21 lakh students, okay, half of the youth of this country sat down in disgusting classrooms with no cooling facility, sweating like monsters to write the exam of their lives. At 5 p.m., they walked out crying like they had seen the hair of Medusa, okay, to their parents. And it was exactly at that moment that they knew NTA fucked up. They did not fuck up. And I'm saying this not to generalize the whole experience, but I'm literally saying this as a true statement. This time, it was not our fault. I mean, it was not the fault of the students that had worked like fucking pigs and cheetahs to get to this point, to actually write a national level exam. Now, okay, there is a little controversy about the difficulty level of the paper. There is somehow controversy about the difficulty level of the paper. Well, if you were a JEE aspirant, that paper wouldn't seem as hard. If you were an IIT JEE aspirant, okay, and if you were to write the JEE exam, that's I think is in about like 2 weeks. You wouldn't find that tough. Fine, because your difficulty level is very different. For 2 years, or maybe 3 years, or for 1 year, you guys have been prepared to handle such questions. Of course, it wouldn't seem difficult to you. Of course, you would be able to handle it. Of course, you wouldn't bawl your eyes out. Still, maybe you wouldn't be answer all of the 45 questions because, like, no, even the teachers aren't able to solve all of the questions in the given amount of time frame. But still, उतना difficult शायद ना लगे because you are an engineering aspirant. We are NEET aspirants. The fucking doctors, the future doctors of this country. Um, and to us, that paper was tough because हमारा difficulty level का pattern ही अलग है. उसमें हमारी गलती नहीं है. I know to eliminate, you have to make the paper tough. I get it. बट इतना टफ नहीं बनाने की कोई सॉल्व ही ना कर पाए. इतना टफ नहीं बनाना है कि एक सेक्शन के ट्रॉमा की वजह से इंसान बाकी दो सेक्शन भी ना ढंग से अटेम्प्ट कर पाए. ऐसे नहीं करना था. एंड लाइक, ठीक है चलो बना दो तुम पेपर टफ. एक वार्निंग मिल सकती थी, एक सैंपल पेपर मिल सकता था, एक हिंट मिल सकता था. अपने पेपर एनटीए को मैं बोल रही हूँ, अपने एनटीए मतलब अपने पेपर के 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले फरवरी के अराउंड बोला पेपर आपका 180 मिनट का होगा और 180 क्वेश्चंस का होगा. हमें बहुत झटका लगा था तभी, बट वी स्टिल अडेप्टेड because it was an adaptable scenario. The timeline was adequate for us. The time duration was adequate for us to adapt to like your new pattern. बट आपने उधर जाकर हमारे मुंह पे पत्थर मारा है. हमें कोई ऐसे मतलब शील्ड भी नहीं मिला कि हम अपने आप को बचा पाए.
How is it fair? How the fuck is it fair? So, let me just share my experience. Oh, it's nothing. It's white. Damn it. Anyways, it looks like it's pink, but it's not. It's white. Another scam. Anyways, मैं गई और I'm an average student, तो मुझे पूरे साल सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने हार्ड वर्क पे था. बिकॉज हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट, राइट? No, not in this scenario, my dear. Even talent cannot be talent in this scenario. Just saying. And मैंने बायोलॉजी खोली, मैंने की उसको सॉल्व. कुछ क्वेश्चंस में फंस रही थी बट मैंने सॉल्व की. केमिस्ट्री पे गई, थोड़ी टफ लगी पर हो गया. फिजिक्स पर आई, हाँ मेरे तो होते लाल हो गए. मतलब किस ब्रह्मांड से उठा के वो लाए वो पेपर. मुझे बहुत गंदा सदमा लगा. एंड बिकॉज मेरे मॉक्स भी ऐसे जाते थे कि वो टफ गया तो मुझे ऐसे सदमा लग जाता था. सो ये भी मुझे लगा कि मेरे साथ ही हो रहा है, सिर्फ मैं ही मंद बुद्धि हूँ और आसपास मेरे जो भी बैठा है वो बहुत तेज है. वन मोमेंट. ओके. सो लाइक आई स्टार्टेड सॉल्विंग द पेपर एंड मुझे लगा था मैं ही डम हूँ. बिकॉज मैं हूँ वैसे एवरेज स्टूडेंट और वो पेपर मिले और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इस वजह से. मैं फिजिक्स करी, मुझे हो ही नहीं रही है फिजिक्स. कुछ मैंने तोड़ मरोड़ के आंसर किया बट लाइक आई रियली डोंट नो उसमें से कितना सही और कितना गलत है. आई रियली डोंट नो. पर जो भी है तो हो गया पेपर. um, मैंने बहुत रोते रोते पेपर किया फिजिक्स का. बहुत बुरा लग रहा था मुझे अंदर से. बिकॉज लाइक एक वन ट्रैक माइंड सिस्टम नहीं होता है पेपर देते समय. जब आप इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो, वन ट्रैक माइंड रखना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज जैसे जैसे आपके सवाल गलत होते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप कितने रैंक्स पीछे जा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में कितने फॉल्ट्स थे. और आप खुद को इतना ज्यादा मतलब डिमोरलाइज कर लेते हो ना पेपर देते समय, जब ऐसा डिफिकल्ट पेपर अनएक्सपेक्टेडली है, कि हिम्मत ही नहीं बचती है आगे कुछ और सोचने की. दिमाग खुल ही नहीं पाता है. एंड ये कोई भी नहीं चाहता कि वो जानबूझ के उसके साथ हो, पर ये होता है. तो मैं बता रही हूँ. और मेरे साथ भी हुआ. मेरे साथ तो और ज्यादा हुआ. वो होता है ना कि दिक्कत सबके साथ होती है, पर मतलब गरीबी में आटा सबका गीला होता है. पर मेरे पास ये पता नहीं क्यों बाढ़ जितना आटा गीला हो जाता है. तो वही बात है. वन मोमेंट गाइस, आई लव च्यूइंग थिंग. तो एनीवेज, मैंने पेपर किया. मैं रो रही थी बहुत. मैं ज्यादा कर भी नहीं पाई और उन्होंने पेपर ले लिया. और मतलब 10 मिनट के पहले तक, 4:50 तक आई वाज लाइक आई एम डन, आई कांट डू दिस एनी मोर. पेपर उन्होंने लिया. बहुत रो रही थी मैं, पर मैंने कैसे कैसे अपने आंसू छुपाए क्लासरूम में, cause I didn't want to cry in front of everyone. मैं बाहर आई and I saw my mom and I saw my father. तभी मैं ज्यादा मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था. बिकॉज ऐसा सिनेरियो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था. मैं गाड़ी में बैठी एंड दोनों ही अचानक से पीछे पड़ गए. बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, कितने नंबर आए, कैसा पेपर आ गया, हर बार का रोना है तुम्हारा. भाई मतलब किसी के पैर पे हथौड़ा पड़ा है, तो इससे पहले कि आप उसके पैर से हथौड़ा हटाओ, क्या आप उसे चार गाली इस बात की सुनाओगे कि तुमने पैर पे हथौड़ा कैसे पड़वा लिया. अरे पड़वा लिया ना, अब हटाओ तो. प्रोसेस तो करने का टाइम दो इंसान को कि उसके साथ हुआ क्या. एनीवेज, कैसे कैसे तो मैंने बताया कि बस चुप हो जाइए, दोनों के सवाल बंद हो जाए. फिर हम गाड़ी में बहुत ही बहस करते हुए आए और सोच रहे थे आगे क्या करना है, प्राइवेट या प्लान बी. निष्कर्ष ये निकला कि पहले आंसर की चेक करते हैं और स्कोर कितना बना है उसके हिसाब से विल डिसाइड. आंसर की मैंने चेक की. आई डोंट नो मेरा कट ऑफ मैच होगा या नहीं. फिर मैंने मतलब
मुझे इस बात का बुरा लगा था, मुझे लगा मेरा ही पेपर खराब गया है। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर किसी ने लिखा हुआ था कैसा गया पेपर, और सामने वाले कह रहे हैं कि ओ अच्छा गया अच्छा गया अच्छा गया। नहीं, सामने वाले कह रहे फिजिक्स टफ आई थी। मैंने बोला अरे ये तो मेरे लिए भी टफ थी, ये लगता है अकेला यही होगा जिसको और लगी होगी मेरे साथ साथ। लेकिन हर कोई कह रहा है फिजिक्स टफ है, फिर धीरे धीरे बात फैली। फिर बड़े बड़े चैनल्स कहने लगे कि फिजिक्स बहुत ही टफ आई थी, फिर पूरा पेपर ही टफ आया था। और 2016 से भी डिफिकल्ट लगा, जो कि हाँ आई एग्री वो था। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस। सब डूबेंगे तो लुटिया इस बार साथ साथ डूबेगी। फिर मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स का फोन आने लगा, एंड लाइक उन्होंने पूछा कैसा गया पेपर, एंड आई सेड कि मेरा तो फिजिक्स काफी गंदा गया है, लाइक आई डोंट नो, पेपर एवरेज सा ही गया है, बकवास गया है। एंड फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि अरे मैंने जिन जिन से बात की वो सब भी कह रहे हैं उनका बकवास गया है, तो तू वो अकेली नहीं है, चिंता मत कर। एंड वो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो पता नहीं, हो सकता है इस बार हम सब सामूहिक डूबे। आह, तो मेरा बस निष्कर्ष ये कहने का कि नीट को एक मजाक बना दिया गया है। हम कठपुतलियां हैं अब, और जैसा जैसा हमें मदारी नचाएगा हम नाचेंगे, मदारी एज इन दी एनपीए। पर ये भी है कि अगर आप देश के यूथ के साथ ऐसे मजाक कर रहे हैं, और उनको ऐसी ऐसी कसौटियों पे खड़ा उतरने के लिए कह रहे हैं जो कि जिसकी उनको कभी प्रैक्टिस तक नहीं थी, ठीक है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिफॉर्म, I don't think you should complain about the fact that your nation is declining, because you're not giving us any opportunities at all. It's very easy to play the blame game. बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि अरे पेपर डिफिकल्ट कहना तो बस एक बहाना है। नहीं यार, पेपर डिफिकल्टी हाँ ठीक है, वो होता है एलिमिनेशन का फैक्टर, लेकिन उसके बाद इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता है। एम्बुलेंसेस आ रही थी सेंटर्स पे, मैंने तो पहली बार देखा ये। तो सिर्फ ये दिक्कत पेपर की डिफिकल्टी लेवल तक सीमित तो नहीं थी। तो if you have the guts to play with the youth of this country, have the guts to accept that your nation is going nowhere. Bye bye.